Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied VSEPR theory. Now, in this lecture, we will study the overlapping of atomic orbitals when they formed covalent bond. Clear? So, when any atom combine together by sharing their electrons, they form a covalent bond. We know that in second chapter, third chapter and fifth chapter, atoms can combine together by sharing of electrons to form covalent bond. So atoms कैसे combine होंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होगा, क्योंकि वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन वो ही मतलब क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में एंड वो ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ओके, सो व्हेन टू ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स, व्हेन टू ऑर्बिटल्स of two atoms come close to form a bond, orbitals are overlapping to each other, so covalent bond हम लोग बात कर रहे हैं. तो covalent bond may be classified into two types, and that one is sigma bond and the second one is pi bond. Sigma bond and pi bond. So these two types of bond depends on overlapping of orbitals. So one is sigma bond and the other one is pi bond. It is denoted by this symbol, and pi symbol, you know that what is the symbol of pi. So sigma bond and pi bond, covalent bond may be classified into two types of bond according to overlapping of orbitals. One is sigma bond, another way is pi bond. So what is sigma bond? So sigma bond, this type of covalent bond is formed by end-to-end overlap, end-to-end, और बेसिक एक सिंपल वर्ड हो जाएगा हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. This type of covalent bond is formed by end-to-end head-on overlapping. So that's why it is known as the head-on overlap or axis overlap. For example, SS overlapping. SS overlapping. S ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो क्या होगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द S ऑर्बिटल, इज अ स्फेरिकल. सो व्हाट विल हैपन, चलो एक ये हमने S ऑर्बिटल दिखा दिया, सेकंड S orbital. So bond is formed by end to end or head on. Okay, head on. So spherical shape है तो यहाँ पे तो क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन से वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होंगे तो वो तो हेड ऑन ही होने वाला है. स्फेरिकल है तो कहाँ पे आप हेड कहाँ पे डिसाइड करोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे साइड में. तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से एस ओवरलैपिंग तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगा, उसके अंदर दूसरा कोई पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या होगा कि दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होगी
जिसको हम बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग। ओके, चल नेक्स्ट वन इज एस पी ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करेंगे। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल? स्फेरिकल and what is the shape of the p orbital? Dumbbell. To head, head on and to end यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे है, इस साइड भी हो सकता है। ये जो साइड है वो एंड नहीं है, एंड टू एंड ओवरलैप करना है। एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, उसमें तो एंड डिसाइड ही नहीं कर सकते, सारे बाजू एंड ही है, ऐसा ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो एंड टू एंड एस एंड पी और हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो इसको हम बोलेंगे एस पी ओवरलैपिंग। चलो, सेम वे द थर्ड टाइप इज P2P, PP overlapping. Again, what is the definition of sigma bond? Head to head or end to end overlapping, end to end. P orbital, again p orbital and end to end, not side to side, end to end overlapping. इसको बोलेंगे PP overlapping. So this type of overlapping formed sigma bond. Again, this type of covalent bond is formed by end to end or head on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called head on overlap or axis overlap. Head on overlap or axis overlap. And basically एक और चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि s orbital है, specifically s orbital can only form sigma bond, it cannot form pi bond. Why? Because of its shape. Shape is spherical and spherical shape होने की वजह से, spherical shape होने की वजह से क्या होगा कि वो एंड टू एंड ओवरलैप ही होगा, क्योंकि उसका हर एक साइड क्या है? एंड ही है। हर एक साइड क्या है? हेड है। तो एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो वो सिग्मा बॉन्ड है। रिमेंबर दैट, वो सिग्मा बॉन्ड है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पाई बॉन्ड। द नेक्स्ट वन इज पाई बॉन्ड। सो व्हाट इज पाई बॉन्ड? So in the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axis remain parallel to each other. Axis remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. एक दूसरे के साथ parallel रहेंगे। ओके, एक्सिस वैसे वो रहेंगे। The orbitals formed due to the side-wise overlapping. यहाँ पे क्या होगा? End to end नहीं होगा, side to side overlap होगा। क्या होगा? Side to side overlap होगा and consist of two shear type of charged cloud above and below the plane of the participating atoms. क्या होगा यहाँ पे? Side to side overlapping होगा। जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहा था? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा था। अब p ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल है, s ऑर्बिटल के अंदर तो पॉसिबल नहीं है।
पी ऑर्बिटल के अंदर हम लोग साइड टू साइड ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल पी ओवरलैपिंग देखते हैं। चलो, साइड टू साइड, नॉट हेड टू हेड, नॉट एंड टू एंड, साइड टू साइड में कुछ इस तरीके से होगा। So this type of overlapping forms pi bond. This type of overlapping forms pi bond, and always remember that sigma bond is stronger than pi bond. Okay, actually it depends on the overlapping of orbitals, and overlapping of orbitals of sigma bond is higher than pi bond, so it is a stronger bond. sigma bond is a stronger bond. एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इन गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर जो सबसे पहला बॉन्ड क्रिएट होगा, पहला बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड दूसरा बॉन्ड उसी मॉलिक्यूल के अंदर उसी एटम के साथ हो रहा है तो वो पाई बॉन्ड है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ N2, ओके, सो बिटवीन टू नाइट्रोजन देयर इज ओनली वन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड सिग्मा बॉन्ड दो पर्टिकुलर एटम के बीच में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। ओके, और बाकी के दो क्या होंगे, तो वो पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। ओके, अगर एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल H2O देखते हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, बिटवीन टू एटम्स देयर इज अ डबल बॉन्ड, देन वन इज सिग्मा बॉन्ड, वन इज पाई बॉन्ड। इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देन वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड टू आर पाई बॉन्ड्स। ओके, तो बेसिक आपको ये याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरल कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं।